Hi guys, this is Rashi and you have tuned into hashtag the blue mic आर्टिस्ट ऑफ द वीक एंड हमारे साथ इस वक्त जो है आर्टिस्ट ऑफ द वीक, अगर मैं उनकी थोड़ी सी तारीफ करूं या उनके बारे में कोई बात करूं तो बहुत कम पड़ जाएगा ना बॉस, क्योंकि छोटा पैकेट बड़ा धमाका ये कहते हैं हम लोग। तो लेट्स जस्ट वेलकम एंड मेक सम नॉइज फॉर सृष्टि तावड़े इन द हाउस। मच थैंक यू। नो, यू हैव टू टेल मी दिस फर्स्ट कि ये जो पूरा जर्नी है ना, इसका कीड़ा कहाँ से चालू हुआ? बहुत रैंडमली लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन के वक्त कुछ काम धंधा नहीं था तो just out of not having anything to do I started writing and yeah, that's how random it is. There is no inspirational or motivational story and all behind it. It's just but you must be writing from before na, या just randomly you said nahi chalo let's just start writing? बचपन में स्कूल में I used to write sketches, science skits, and college में तो I took this huge 5-6 years break and didn't really write anything. But then lockdown के बाद again I started writing poems, parody songs, and stories, screenplays, all of that I started writing. And then just like that, जितना randomly ये सब आया उतना ही randomly rap आया. And yeah, फर्स्ट वो कौन सा रैप था सृष्टि का जो फर्स्ट ऐसे पेपर पे लिखा एंड यू लाइक ओ ये मैंने रैप लिखा है, आई एम गोइंग टू परफॉर्म इट? It was around nepotism, and yeah, I had actually I was told by a friend कि तुझे रैप ट्राई करना चाहिए. So मैंने 2-3 रैप सुने and उसमें से एक फिगर आउट कर लिया कि फॉर्मेट क्या होता है रैप का. तो वो फिगर आउट होने के बाद दिस नेपोटिज्म वाज वन ऑफ द टॉपिक्स जिसके बारे में मेरा एक ओपिनियन है स्ट्रॉन्ग. तो आई थॉट लाइक रैप इज अ गुड वे टू स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट दैट. अभी तक हाँ, अगर एक मैं वे करना चाहूँ तो तुम्हें क्या लगता है सृष्टि का एक वो सक्सेस मोमेंट क्या था जब ऐसा लगा कि हाँ हे मी आहे काय, असं झालं काय? The day I performed and the day Chilka and Guy was shown on TV, उस दिन because that was a very special song to me, क्योंकि मैं उसमें वो बातें कर रही थी जो तब तक मैंने इंडिया में किसी को करते हुए देखी नहीं थी. तो वो बातें इतनी अप्रिशिएट की जाती क्योंकि any time you do something new, it's not easily appreciated. It's always questioned, criticized and all. But even though this was so new, people really took it well. और बहुत appreciation मिला उस पे, बहुत support मिला. So that was a surprise, pleasant surprise. And that was the moment I figured कि I am going to be able to do this forever. सृष्टि, सक्सेस की हमने बात कर ली, ठीक है, और वो सक्सेस जब आती है तो अच्छा ही लगता है सबको, ठीक है, और उस टाइम पे सब लोग जब आपको स्टेज पे देखते हैं ना तो आपके पीछे का पूरा स्ट्रगल भूल जाते हैं या वो कहीं ना कहीं धुंधला हो जाता है. पर अपने को मालूम है कि हम लोग ने क्या क्या झेला है वहां तक आने के लिए. इट माइट नॉट बी अ वेरी बिग हेरोइक स्टोरी बट एवरीबody हैज देयर स्ट्रगल्स. व्हाट आर दोस स्ट्रगल्स इन योर लाइफ और व्हाट हैव दे बीन? फर्स्ट, सेकंड, हाउ डिड यू ओवरकम देम? First, I think almost everything that I remember from the first 21 years of my life will make for a very good biopic, because there's so much drama, so much happening, and even though now I can smile and all about it, but a lot of it was very traumatic at the time. और उस मतलब वो जो इवेंट्स है सारे, जितने भी, जिसको भी चाहे ट्रॉमेटिक बोल लो चाहे डिफिकल्ट व्हाटएवर, उन सारे इवेंट्स में से the most difficult thing to do when you're really really down is to figure out what's the best thing to take from this event and go ahead. And somehow I don't know how at that age मेरे दिमाग में कहाँ से आया वो मुझे भी नहीं पता. बस मेरे दिमाग में था कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें से जो भी बेस्ट है वो मेरे को उठा के उसका मतलब I want to turn this weak moment into my strength. और तब मेरे दिमाग में हुआ करता था and I kept doing that, which has added up to as an resulted in me constantly thinking about things that are not common, constantly thinking about artistic ways of turning everything that's going around me into
creative, pieces. Something creative. Yeah. And to be able to look at everything with that perspective takes a lot of practice, which I did for like 21 years. 21 was my turning point of life. Yeah. It's when I started writing and everything changed for me. And उसके बाद कोई trauma मुझे याद नहीं. 21 के बाद nothing like bad enough could happen कि मुझे traumatic memory के तौर पे याद है. But yeah, so wherever it was difficult, it is difficult generally to take the right lesson from a situation or learn something or take the right step even if it's difficult. जहाँ पे भी ये सब situations थी वहाँ पे मैंने वो steps लिए हैं courage दिखा के या strength दिखा के. And I think that built up for me कि मुझे रैप सीन में घुसने के लिए एज सच कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, जो जनरली रैपर्स का होता ही है कि रैप सीन में घुसने के लिए ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, इतना ट्राई करना पड़ा. I already did that with my writing before I started writing, and when I started writing it went smooth, but I already had a 21-year backup struggle period which we otherwise would not count because I was not writing in those 21 years. But whatever I'm writing right now, it's all come from those 21 years. If I had not gone through all of these traumatic events, I would not have been able to think the way I think and look at the world the way I look at the world. That entire period has a lot to do with whatever I'm achieving right now. सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं ना, जब भी आपने वो आप ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट से गुजर रहे थे तभी भी, और अब जब आप सक्सेसफुल एक तरह से पहुंच गए वहां पे तभी भी, कौन रहा है कॉन्स्टेंटली आपके पीछे, हु हैज ऑलवेज बीन दैट इंस्पिरेशन कि नहीं, आई हैव टू गो ऑन? आई बाबा, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आई हैव फ्रॉम माय पेरेंट्स. And back when I was a child, tabhi I was not as such looking for any support really because I didn't know what I needed. So initially जब that whole maid incident जो बचपन वाले song में मैंने mention करा है, तो during that whole maid incident it was a 3-year long event, 3 years long period where I was going through the same thing every day. एंड उस वक्त मेरा इतना दिमाग तो था नहीं कि मुझे कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं, वो मुझे समझ भी आए, उसमें ध्यान ही नहीं. आई वॉज जस्ट ऑन सर्वाइवल मोड कि मुझे बस इस घर में जिंदा रहना है रोज. दैट वॉज द होल, लाइक नो फ्रेंड्स, नथिंग, नो अदर थिंग टू फोकस ऑन, जस्ट कि मेरे को इससे इस औरत से मार खाने के बाद जिंदा रहना है एंड आई डोंट हैव टू डाई. दैट वाज माय मेंटालिटी व्हेन आई वाज 4. एंड उस वक्त कोई ध्यान नहीं था मेरा इस बात पे कि कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं, कौन मेरे तरफ है कौन नहीं. नथिंग आई केयर्ड अबाउट एट दैट पॉइंट. और once I told my parents when I was 6, I told my parents about all of this, and then they tried their best to like kind of in a very legal right way get revenge. Like make that person pay for it वैसा. But that didn't really work, didn't really happen. Nothing happened there. But they've always tried their best, and now while I was on the show they were मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, which I could not directly see, and if I directly saw it I would not have been able to handle it. So बहुत बहुत कुछ ऐसे मेरे आंखों से छुपा हुआ है कि मेरे को कितना सपोर्ट मिल रहा है. That support is not in front of me, but they are really there, you know, they're doing everything that's possible. Wow. Acha, let's talk about the changing music scenes in the country and otherwise also. एक टाइम था जब रैप का बहुत ही एक सेट पैटर्न था दिमाग में लोगों के कि रैप मतलब ऐसा ही होगा, फिर उसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया, सिमिलरली म्यूजिक भी चेंज हो गया. एक तो मुझे पूछना है कि जितना अभी डिसिंग होता है, ठीक है, प्लस यूजिंग अब्यूजेस या इस तरह की चीजें जो विच इज नॉट एग्जैक्टली समथिंग दैट एनी नॉर्मल पर्सन वुड डू इन देयर लाइफ्स, इसका बहुत प्रचलन मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है. ठीक है, पब्लिक अच्छा कंटेंट चाहती है पर पब्लिक को ये भी चाहिए. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल? बिकॉज आई फर्मली बिलीव कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा ही रैप होना चाहिए या गाली होगी तो ज्यादा आपको व्यूज आएंगे. आई डोंट बिलीव इन इट पर्सनली.
नहीं, ये सच है कि गालियों की तो आपको ज्यादा व्यूज आएंगे, लेकिन हाँ ये तो है ही, मतलब अब आप क्या बोले अभी, लोग, हम लोग ऐसे ही लोगों के आसपास रह रहे हैं जिनको सोसाइटी। ऐसा देखने में, but I don't think it's necessary, and I don't think it's something that makes you an artist or makes you a rapper. आपको वो आपका गाली देना डिफाइन नहीं कर सकता, डिस करना डिफाइन नहीं कर सकता. If that's what's defining you, then sorry for you. बस इतना ही है आपके पास, जो ऑलरेडी सबके पास है, हर कोई गाली दे सकता है, कोई भी कर सकता है ये डिस. And if that's all that makes you an artist and there is no other thought, then there's no point in being an artist. Quit that job. Get a real job. Yeah, get something that you're actually good at. Yeah. एंड आई थिंक डिस्क के अलावा, एंड वो सेट फॉर्मेट की जो आपने बात करी ना, कि एक ही तरह का रैप का मतलब एक तरह का है सबके लिए. हाँ. तो इफ यू नोटिस, मोस्ट थिंग्स के डेफिनेशंस ओवर टाइम चेंज होते ही रहते हैं. नाउ एट वन पॉइंट पीपल बिलीव द अर्थ वाज फ्लैट, नाउ पीपल बिलीव द अर्थ इज अ ग्लोब, राइट? इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. कि पहले सन हमारे आगे पीछे घूम रहा था, अब हम सन के आगे पीछे घूम रहे हैं. दिमाग में चेंज हो चुका है, एंड न्यू थिंग्स आर गेटिंग एक्सेप्टेड. सो द रैप का ओरिजिन जो है, दैट केम फ्रॉम द वर्ड चैट. टू रैप मीन्स टू चैट. ये बात भी मैंने पहले भी किसी इंटरव्यू में बोल रखी है, उस पर भी ट्रोल हो चुकी हूँ मैं कि इट डज नॉट. पीपल डोंट वांट टू बिलीव कि रैप मीन्स चैट, बट दैट्स द ओरिजिन. अभी फिल्म मेकिंग अगर आप देखो ना, फिल्म मेकिंग एक तरह की होती थी पहले, एंड देन इट चेंज, एंड नाउ इट्स सो वर्सेटाइल, सो ओपन टू एनीथिंग, लाइक सो मेनी मोर डोर्स आर ओपन्ड. जो अगर आप 100 साल या चलो 50 साल पीछे जाके देखो, तो दो फिल्म्स को कंपेयर करके बहुत डिफरेंस मिलेगा. बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों में से एक ही फिल्म है, दोनों भी फिल्म्स ही है. करेक्ट. It's just evolved now. Evolving. So, yeah. Same is with music, same is with the rap scene. कि evolve होने ही वाला है. There's going to be more things you will explore, and if you decide to remain stuck कि नहीं हम सिर्फ वही सुनेंगे जिसमें flex है, जिसमें diss है और जिसमें गाली है, वही हमारे लिए rap है, तो you're living inside this. And तुम्हारी choice है फिर. तो ये evolving scenes of rap से obviously I have to talk about दही शक्कर. How did it happen? क्या scene है इसके पीछे, बताओ मेरे को. दही शक्कर is the first song of my debut album. The album is called Breadcrumbs, and it's upcoming. अभी आया नहीं, आने वाला बहुत जल्दी. The idea behind Dahi Shakkar was to talk about the thought कि किसी भी सेपरेशन और ब्रेकअप का हमेशा नेगेटिव इमोशंस के साथ एसोसिएशन होता है, पॉपुलर. बट इफ यू are matured enough, and with the person who's matured enough, you will be able to separate with positive emotions surrounding you, and the relation will not have to be bitter. कुछ खराब होने की जरूरत नहीं है, ब्रेकअप का मतलब ही खराब होने की जरूरत नहीं है. It can be very positive, very smooth, very easy, and that's something I've experienced, so I know it's possible. And when I know it's possible, I want to promote it because it's beautiful. So I decided to promote it with this song, Dahi Shakkar. And Dahi Shakkar इसीलिए है क्योंकि according to me, these breakups are just a open door to a new beginning to something. And किसी भी नई चीज को शुरू करने से पहले दही शक्कर खाते हैं. So that's where Dahi Shakkar came from. So we also want to see now quickly and here. कुछ तो बदलेगा है ना, फर्क पड़ेगा है ना, जाने से पहले हो जाए जरा सा दही शक्कर, नाता अब तोड़ के जाना थोड़ा आसान है ना, जाने से पहले हो जाए जरा सा दही शक्कर. It is very cute. The way that you have put it, of course the song sounds super beautiful, but the way that you have put it, breakup और दही शक्कर, सही में बहुत ही, like, it sounds really nice.
Yeah. अच्छा मेरे को बताओ कि तुमने कभी ऐसे बैठे बैठे किसी सिंगर की नकल की है? ऐसे सोचा कि स्टेज पे एक बार तो ये सिंगर को कॉपी करना है? नहीं, ऑनेस्ट का सृष्टि? I'll be very honest. I don't. एक तो मैं पूरी जिंदगी मैंने कभी नहीं सोचा था सिंगर बनने का, तो मैं किसी के, क्योंकि ना मुझे बहुत बचपन से सबने बताया था कि मेरी आवाज बेकार है, तो नहीं, कोई नहीं सुनना चाहता है. तो आई नेवर यूज टू पार्टिसिपेट इन सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स, आई नेवर यूज टू ट्राई टू गो, उस तरफ ही नहीं जाती थी मैं बिल्कुल. तो ये सिंगिंग विंगिंग का तो कभी मैंने ट्राई ही नहीं किया, कॉन्फिडेंस ही नहीं था उतना. बट जब मैं रैप शो मतलब हसल पे गई, तो हसल पे जितने भी बाकी रैपर्स थे उनकी मैंने काफी ट्राई की है ये करने की, कि वो जैसे बात करते हैं, वो जैसे अपना वर्स सुनाते हैं, हाँ. उनके तरह से सुनाने का. एंड वो मतलब मजा भी आता है, बिकॉज हर एक का इतना डिफरेंट स्टाइल, और इतना कुछ लेके आए थे ना सारे कंटेस्टेंट्स, अपना Yeah. अपना मसाला, तो वो कॉपी करने में बहुत मजा आता है. Which of course brings me to छोटा डॉन. या छोटा डॉन के बारे में बताइए जरा. हसल से पहले मैं जितने भी जॉब्स कर रही थी सारे कंटेंट राइटिंग के थे. तो बहुत टाइप की कंटेंट राइटिंग कर ली थी मैंने. आर्टिकल लिखो, फिर किसी के लिए एकदम मतलब फ्रॉड काम भी कर लिए थे कि नकली रिव्यूज लिखो एंड ऑल दैट, हर चीज लिख के हो गया था. तो और क्या होता है, जितने भी जो भी क्लाइंट्स होते हैं, कभी खुश होता नहीं है कोई भी क्लाइंट. तो उनके जो रिव्यूज आते, फीडबैक आता रहता है ना कंटिन्यूअसली, कि ये ऐसा लिखा है, ये वैसा लिखा है, इसमें ये करो वो करो. दैट हैज बीन अ ह्यूज पार्ट ऑफ माय 1 year करियर इन कंटेंट राइटिंग. तो वो मुझे उस बारे में बात करनी थी, बिकॉज कोई गाना है नहीं जो इस बारे में बात कर रहा है, तो आई वांटेड टू पुट दैट फॉरवर्ड. एंड छोटा डॉन का कैरेक्टर इज बेसिकली जस्ट मी. लाइक वैसे वो वाला कैरेक्टर मैं कभी भी रैंडमली उस कैरेक्टर में होती हूँ इन जनरल. तो वी जस्ट यूज दैट. एंड बिकॉज दो मतलब मैं, मेरे अंदर का कंटेंट राइटर एंड मेरे अंदर का छोटा डॉन वर सच एक्सट्रीम्स. तो वो अपने आप को कॉम्बिनेशन बैठ गया कि इन दोनों का कॉन्वर्जेशन विल बी समथिंग यू वांट टू लिसन टू, समथिंग यू वांट टू वॉच. So that is how the idea got in place. And मैं शायरिया लिखती हूँ बहुत, तो I wanted to utilize that because finally I was writing something about content writing. तो बहुत बड़ी opportunity थी कि इसमें मैं अपनी शायरिया पूरी flex करूँ, कि ये भी कर लेती हूँ मैं. तो that's why I got Chhota Don to ask for an advertisement, and the advertisement was a शायरी. And I made sure कि वो उस तरह से मैं बिल्ड भी करूँ कि इसकी स्टोरी भी बन जाए, एक प्रॉपर स्टार्ट मिडल एंड एंड ऑल. हर चीज की प्रैक्टिस अननोइंगली करी है मैंने, कि शायरिया लिखना भी इट वाज नॉट पार्ट ऑफ अ प्लान कि आगे जाके मुझे इसको यूटिलाइज करना है. मैं बस लिख रही थी ऐसी, और मैंने बहुत सारी हजारों लिख दी, एंड देन इसमें यूज हो गया. तो दैट्स हाउ एवरीथिंग इज वर्कड आउट, कि जो भी प्रैक्टिस करी थी करते वक्त पता नहीं था, इसलिए प्रैक्टिस में भी मजा आया. इसलिए वो स्ट्रगल वर्ड कभी मैं खुद से यूज नहीं करती, बिकॉज वो फील नहीं हुआ मुझे स्ट्रगल की तरह, क्योंकि मैं तो बहुत मजे में कर रही थी. हाँ अपने को, हाँ हम लोग तो लिख रहे थे, ये सोचा नहीं था ना कि वी आर गोइंग टू यूज इट लाइक दिस वन डे. बट यू नो ऑब्वियसली अभी थोड़ा सा सुनाना पड़ेगा ना मेकओवर. हाँ. ये इंडस्ट्री वालों का भी कितना बड़ा गम है. काय का लाइफस्टाइल झाला, काय का फ्रीडम है. अपनी मर्जी से कुछ खा पी नहीं सकते, मेकअप के बिना किधर जा भी नहीं सकते. फेम के लिए आदमी ऐसे उलझ सकता है. उन दुनिया देखे रहे, उन समझ सकता है कि उनका जिंदगी झंड है, पर आज नहीं समझेगा. पप्पू मेरा गंदे. एक नंबर ब्रो, यू आर ऑसम. सृष्टि आगे एक्टिंग का प्लान है ना तुम्हारा? सच बोलना. मेरा जो भी एक आर्टिस्ट कर सकता है, मेरा वो हर चीज करने का प्लान है. आप रैपिंग हो गया, राइटिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, होस्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, मिमिक्री, वॉइस ओवर, कुछ भी बोल लो. मेरे को सुनना है अब एक और गाना which my listeners will also listen to, which is obviously मैं नहीं तो कौन बे. ना रैपर वाली वाइब नहीं है, ओके, पर ऐसा नहीं कि वर्सेटाइल नहीं है, ठीक है. वो जरा सबर करो. कौन बोला डिस मेरा स्टाइल नहीं है? अब लो. Today I'm picking mama, open the confession box and let me start with the little one, the paradox. अड़ा पटे सबकी छोरा ससी याना इन्ना ठार बच्चे मारदा है shots पे shots.
अगला कौन आना चाहेगा? सनिया चंपा की कोई नहीं आएगा, दुबई का शेख काफी फ्लेक्सी लग रहा था, करना नहीं था कल कितनी सेक्सी लग रहा था, क्योंकि से याद आया क्योंकि भी है लाइन में, मराठी पोटी पहा कशी करायली एनलाइटमेंट, कोई है जो बैठा उड़ने को तैयार और वो एक टांग रखा खिड़की तक बाहर, हल्के में लियो बॉडी देख छोरा लंबरदार, सारे देखा गुरु अब मिलियन ते नंबर पार। इट इज ऑलवेज स्पेशल, इट इज ऑलवेज ग्रेट। और इसके अलावा मुझे एक और गाना सुना दो। हाँ, फूल आउट ऑफ यू करके एक गाना है जो प्रॉपर रैप है। वैसे तो सारे खुद ही की तारीफें सुनाने आते हैं यहाँ पे, खुद ही के मुंह से खुद ही के बारे में रूमर फैलाते हैं जहां में, तू भी सीखेगा ओके चल, तू भी संडे को आ जाना नहा के, इजी है करके दिखाऊं क्या? चल ठीक है सुन ले फिर। I'm just a beginner, come up and I'll show you what a beginner is. You rap like a winner, I rap like I don't give a damn who the winner is. सीखे ना ये flow भी तभी तो लग रहा थोड़ा feverish. तू डर तो नहीं रहा ना bro? I'm looking for all of the remedies but nothing's working. Those who've been trolling me have been deleting enough. Now they worried probably because now they know I'ma be reading enough. Throwing shit at me previously, now they say I ain't deserving enough. Tell me now, am I disturbing? Look at me, I'm on the stage and I'm eating it up. Thank you. Bro, you are awesome. Thank you. Last question for you. A lot of people want to make it big in the music scene. Okay? They want to do different things. They want to try it out. What will be your message to them? That do different things. Try it out. That's the message. You said it. Ki, matlab, I think right now, maximum art work that I come across in terms of music, I find very similar to whatever's becoming popular. एक गाना पॉपुलर हो गया उस जैसे ही सारे गाने बनने लग जाते हैं, एंड आई डोंट थिंक दैट्स द पॉइंट ऑफ आर्ट एट ऑल कि आप वो करो जो किसी और ने करा और वो लोगों ने देख लिया. यू आर सपोज टू डू व्हाट यू आर सपोज टू डू, जो कोई और नहीं कर रहा, एंड देन दैट्स सपोज टू बिकम द थिंग जो लोगों ने देख लिया, देन इट मीन्स समथिंग. तो वो डिफरेंट थिंग्स जो होती है, जो आपके अंदर से आती है, जो आपने कहीं देखी नहीं सुनी नहीं, आपने क्रिएट करी, वो क्रिएट करते रहना है. एंड वंस दैट बिकम्स अ रूटीन एट सम पॉइंट, व्हेन स्पेशली व्हेन यू आर एंजॉयिंग दैट रूटीन, दैट्स डेफिनेटली व्हेन यू आर बीइंग योरसेल्फ. इफ यू आर really enjoying the struggle, so enjoy the struggle and it's going to look beautiful once you've reached there, that point. तब बताने में बहुत मजा आएगा कि मैंने पहले ये करा था, वो करा था, इतना मुश्किल था सब. तो वो जो मुश्किल है उसको पूरा जियो और याद रखो कि ये सब इसमें से हम गुजर रहे अब भी, बिकॉज वही लोग गुजरते हैं इसमें से जो वहां पहुंचने वाले होते हैं. That is aptly said, absolutely right. Thank you so much, Srishti, हमसे बात करने के लिए. It has been an absolute pleasure. Thank you. It has been a pleasure for me as well. Thank you.